student, how are you? This is mathematics paper syllabus D 4024/22 May June 2016 paper 2. In this paper we can use the calculator. So start the paper. The question number 1 is each year Reds play the blue in the basketball match. In 2014 there were 40,500 tickets sold for the match. In 2015 the number of tickets sold was 2.4 more than the 2014. It means 2.4% ज़्यादा सोल्ड हुए हैं 2014 में, विच इज़ 40,500. तो सिंपली हम करेंगे ये कि 40,500 का 2.4% निकाल लेंगे. 2.4% निकालेंगे और डिवाइड बाय परसेंट मीन्स 100 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए. तो लेट्स चेक. हियर इज द कैलकुलेटर. 40,500 मल्टीप्लाई बाय 2.4 and divided by 100, which is 972 tickets is sold more than 2014. So for 2015 we will add this value to the 2014 equal to 2014 tickets plus 972 which is the percent of 2.4. तो 2014 में कितने में टिकट सोल्ड हुए हैं? 40,500 और प्लस 972. टोटल कर लेते हैं इसको. इसके अंदर हम जमा कर लेते हैं. दिस इज द कैलकुलेटर. प्लस कर लेते हैं इसके अंदर कितना? 40,500 विच इज़ 41,472. This is the answer. Okay. Now the part B. In 2015, the cost per ticket for the match was 68.25. The cost per ticket for the match increased by 5% from 2014 to 2015. Calculate the cost of 2014. This is the important points. So it means if the price of the ticket in 2014 is 100 rupees, so 2015 में वो टिकट के प्राइस मज़ीद बढ़ गए, वो 105 हो गए. तो अब वो ये कह रहा है कि 2014 में उसके प्राइस क्या होंगे. तो 2014 में प्राइस निकालने का सिंपल तरीका ये है कि हम क्या करें, 68.25 डॉलर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से और डिवाइड कर देते हैं 105 से. ओके, हियर दिस इज द कैलकुलेटर. नेक्स्ट सॉल्व. 68, the price is 68.25 multiplied by 100 and divided by 105 which is 65 $65. It means in 2014 the price will be $65. Okay, now start part C, which is calculate the percentage increase from 2014 to 2015 in the total money taken from the match. So first we calculate the money for 2014. For 2014 total ticket was 40,500 multiply that one ticket will be sold by $65. So the total amount will be 40,500 multiplied by 65
is 2632500. This is the total amount which is get by the 2014. For 2015, the total tickets sold 41472, and the each ticket is sold by 68.25. So the total money will be get for 2015 is 41472 multiplied by 68.25. It is 2830 is 283464. Okay, we have to calculate the percentage. How can we calculate the percentage? Very easy. First we calculate the difference. It we calculate by 2830464 minus 2632500, which is 7964. अब हमने इसको कैलकुलेट करना है इन परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कैलकुलेट करने का तरीकेकार सिंपल सा ये है कि 19764 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2014 वैल्यू 2632500. So we calculate multiply by 100 divided by 2632500, which is 7.25. 7.52. So this is the answer, 7.52%. So now we move the question number next page. This is question 2 part A. JK vector is 25, KL vector is 4 minus 2, and LM vector is minus 1 and 3. So find the JM. JM will be sum of this all vector, which is JK, J2K plus KL plus LM. So from J to M we solve. So the vector for 2, 5 plus KL is vector is 4 minus 2 plus LM vector is minus 1 and 3. Very simple. 2 plus 4, 6 minus 1 equal to 5. 5 minus 2, 3. 3 plus 3, 6. This is the answer. The answer is 5, 6. This is the vector of JM. Now part 2. Calculate the KL. 3. This is the part 2. Calculate the KL mode. So the mode of KL is very simple. The formula is x square plus y square. So x value is 4 and y value is minus 2. KL vector is, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको. वैसे KL वेक्टर क्या है आपके पास? 4 और माइनस 2. 4 का स्क्वायर एंड माइनस 2 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 4 विच इज 20. 20 का रूट अगर हम निकालते हैं तो इसका 20 का रूट आ जाएगा 2 रूट अंडर रूट 5. दिस इज योर आंसर. नाउ मूव ऑन पार्ट डी. Very simple. In the diagram, OA is A, OA is A, and OB is B, O to B is B. C is the midpoint. C is the point such that
OAC is a straight line and AC is a 2 time of OA. AC is a straight line and OA is a 2 time of OC. It means it is the 2A. Okay. D is the midpoint of OB. D is the midpoint of OB. It means total length is B, so it 1/2B and is also 1/2B, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है तो इन दोनों के मिड पॉइंट की जो वैल्यू होगी OB वो भी हाफ होगी और D to B वे भी हाफ होगी. ओके, मजीद क्या कहना चाह रहे हैं भाई? ये कह रहे हैं कि सच डेट EC इक्वल टू OD. EC इक्वल टू OD. OD की वैल्यू कितनी है? हाफ B, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ B. ओके, नाउ एक्सप्रेस इन अ सिंपल पॉसिबल इन टर्म ऑफ A एंड B. सबसे पहले हमने क्या निकालना है? AD. A से D तक. अब A से D तक किस तरह से करेंगे? पहले हम जाएंगे A to O, यानी AD इक्वल होगा OA, ठीक है, एंड देन O to D. O to D. O to A की जो डायरेक्शन है वो हम अपोजिट लेंगे, तो अपोजिट डायरेक्शन लेंगे तो इट मीन्स -A प्लस, और फिर हम जाएंगे D पे. D कितना है? 1/2D. तो इसको हम सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं 1/2B minus A. दिस इज आंसर. EB. EB इज वेरी सिंपल. EB इक्वल है, पहले हम कहाँ जाएंगे? हम E से C में. E से C इट मीन्स 1/2B. फिर हम जाएंगे C to O. C to O मीन्स 2A प्लस A. 2A प्लस A कितना हो जाएगा? 3A प्लस O से B तक विच इज B. 1/2B हाफ B प्लस B कितना हो जाएगा? 3/2B एंड प्लस 3A. ये भी आंसर सही है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं. तो 3 अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा? 1/2. ओके, सॉरी, वी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. A डायरेक्शन इज फ्रॉम O to C, लेकिन हमने जिस तरह से मूव करना है C to ये डायरेक्शन माइनस में आ जाएगी, तो माइनस हो जाएगा ये. ओके, तो माइनस A. ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है. नाउ दैट कैलकुलेट द रेशियो ऑफ EB. EB रेशियो को से बराबर होता है डिवाइड करना, तो हमने AD से कर दिया डिवाइड. इसको इस तरह से लिख सकते हैं. EB की वैल्यू हमारे पास कितनी है? EB की वैल्यू हमारे पास आई है 3 of 1/2B minus A डिवाइडेड AD की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 1/2B minus A. So this factor is cancelled out by this factor equal to 3/1. So the ratio is 3:1. डिवाइड को फॉर्म को अगर हम खोलेंगे तो 3 लगा के हम क्या करेंगे? रेशियो का साइन एन, क्योंकि हमने इसी तरह से इसको अनफोल्ड भी किया था. EB रेशियो मीन्स डिवाइड AD, तो इसको हम 3 डिवाइडेड बाय 1, तो 3:1. दिस इज द क्वेश्चन 2 इज कंप्लीटेड. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3. Steve asked 25 women how many children they have. The results are summarized in the table below. 0 चिल्ड्रन हैं, 7 वुमेन्स के, 5 वुमेन्स के 1 चिल्ड्रन हैं, 6 वुमेन के 2 चिल्ड्रन हैं, एंड सो ऑन. फाइंड द मीन. दिस इज कॉल्ड X and this is called F. Frequency means F. And first we multiply Fx. Okay, bhai. Multiply Fx. Make a column from here. Okay, so very easy, do fastly. So 0 into 7
0, 5 into 1 5, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12. ओके, सम करते हैं इन सबका सम कितना आना चाहिए 25. 5 and 12 plus 12 which is 41. So this is called summation of fx and this is called summation of f. The mean formula is very simple, is mean equal to summation of fx divided by summation of f. Summation fx कितना है हमारे पास 41 divided by 25. Okay, this is the calculator. 41 divided by 25 equal to 1.64. This is the answer. 1.64 is the mean. Okay, find the median. मीडियन को सिंपली फॉर्मेट करने के लिए हम करते ये हैं कि कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं. ओके भाई, कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी निकाल लेते हैं. वेरी सिंपल है. कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी ये रही. फ्रिक्वेंसी क्या है? सबसे पहले क्या है फ्रिक्वेंसी 7, तो 7 को हम ऐसे लिख देंगे. +5, 7 + 5 कितना हो जाएगा 12 एंड 12 के अंदर हम 6 को प्लस करते हैं विच इज़ 18 + 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 22 + 3 25. ओके, फर्स्टली वी टोटल सम ऑफ फ्रिक्वेंसी इज 25 इज अ इवन नंबर. सो हम इसको ऑड नंबर को हम इवन नंबर बनाने के लिए हम 1 से प्लस कर लेते हैं डिवाइड बाई 2 विच इज़ 13. नाउ वी सीक द 13 फ्रॉम कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी एंड 13 is lie on in 18 पे लाई कर रहा है. 18 पे जो लाई कर रहा है तो इसकी वैल्यू हम इसकी करस्पॉन्डिंग 2 में देख लेंगे. तो इसका मीडियन जो है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है. दोबारा समझ लेते हैं, सिंपल सा सवाल है. हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि फ्रिक्वेंसी को डिवाइड कर देते हैं 2 से. अब मैं फ्रिक्वेंसी को 2 से डिवाइड करूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा 12.5. तो पॉइंट से बचने के लिए हम करते ये हैं कि इसके अंदर +1 कर लेते हैं, यानी इवन नंबर बना लेते हैं. 25 + 1 विच इज़ 26 डिवाइड बाई 2 13. अब 13 को हम देखेंगे यहाँ पे लाई करेंगे तो 13 जो है वो 7 में लाई होता है. 13 नंबर 7 में नहीं आ रहा है. 13 नंबर 12 में आ रहा है. 12 में भी नहीं आ रहा है. तो 13 नंबर 18 में आ रहा है. तो 18 के क्रॉसपॉन्डिंग हम x की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ 2. तो ये इसका आंसर है. पार्ट 3 द मोड इज़ वेरी सिंपल. मोड इज़ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी को देखेंगे. सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इसमें किसकी है 7 की है विच इज़ 0. तो हमारे पास जो मोड आ रहा होगा सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू वो कौन सी है 0. स्टीवन सेज द मोड इज़ द एवरेज डेट द बेस्ट रिप्रेजेंट द डेटा. एक्सप्लेन वाई द स्टेप इज रॉन्ग. बिकॉज डेट जो एवरेज होती है वो तो मिड पॉइंट होता है और जो मोड होता है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है. सो द आंसर इज वेरी सिंपल. मोड इज मोस्ट रिपीटेड वैल्यू. मोस्ट रिपीटेड value, not the given average, not given mid point. Now part C. Steve choose 2 women at random from the group. Calculate the probability both of them have just one child. Important point क्या है 1 child. Given your answer fraction in a simplest form. 1 child. Let's move 1 child. 1 child have the 5 women. Okay. So the probability will be, how can we calculate the probability? The probability will be outcome which is 5 divided by total will be 25. मल्टीप्लाई 2 है
तो हम क्या करेंगे 5, तो 1 अगर मैं वुमेन्स को ले लूँगा तो हमारे पास सैम्पल स्पेस कितना रह जाएगा, 5 - 1 4, और यहाँ पे सैम्पल स्पेस में से टोटल सैम्पल स्पेस भी कम हो जाएगा विच इज 24. सो कैलकुलेट 5 1 5, 5 5 25, 4 1 4, 4 6 24, which is 1 upon 5 is 30. So let's see, 1 divided by 30 it is 0.03. ये प्रॉपर्टी आई होगी, या फिर आप इसको कह सकते हैं 1/30. We complete the part C, and the part D is draw the chart to represent the data. Okay, first data is 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 7. 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 7. सही है, तो ये हम क्या कर लेते हैं 1 8. ये 0 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आनी चाहिए, 7, which is 7. प्लीज यूज द स्केल. मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, इसलिए मैं ज़रा इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ. द नेक्स्ट इज okay, this is the part D is completed. Now we move on part E. Steve show the Frank the paper on which the record the data from his survey. Part of the paper has been torn. Okay, which 5 number are missing from the part paper? So how many times the 1 is come? 1 is come 1 2 3 4. First we start from the 0 कितने टाइम आना चाहिए, 7 टाइम आना चाहिए. चेक करते हैं कितने टाइम आया हुआ है. 0 आया हुआ है 1 2 3 4 5, तो 2 टाइम मिसिंग है, तो एक 0 और 0 मिसिंग हुआ तो 2 आ गया हमारे पास 0. अब जरा 1 को देखते हैं. 1 कितने टाइम, 1 जो है यहाँ पे पता है कि 5 टाइम आना चाहिए, 5 टाइम. तो 1 को इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4. 5 टाइम नहीं है, तो हमने एक 1 मिसिंग है, 1 मिसिंग आ गया. 2 जो है वो कितना टाइम आना चाहिए, 2 आना चाहिए 6 टाइम. तो 2 1 2 3 4 5 6, और 2 पूरा आया हुआ है. देन फिर हम 3 देखते हैं. 3 कितना टाइम आना चाहिए, 4 टाइम. तो 3 को जरा देखते हैं 1 2 2, एक दफ़ा मिसिंग है तो हमने 3 कर दिया, तो 3 टाइम आ गया. अच्छा, और कौन सा है हमारे पास, 4 कितना टाइम आना चाहिए, 3 टाइम. तो 4 कितना है हमारे पास, 4 है 1 टाइम एंड 2 टाइम. 2 टाइम है हमारे पास, क्या है 4 भी मिसिंग है. तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3 0 0 1 3 and 4. दिस इज द आंसर. वी completed our question number 3. Now we will move on question 5 in the next video. Thank you for watching. Allah Hafiz.